Good evening, guys. I am Navid, a SEBI registered research analyst by the name of Trading Brain for You. So it's 5th of October 2023. We are recording this session. We're basically starting this new initiative on the request of many our clients in Trading Brain for You. They want to learn also by the name of Navid View, where the purpose of this new initiative is basically to provide the market insight about where the market is placing itself on a given at a given point of time, what we expect in the near future, and how you can position by taking the how you can basically take the advantage by positioning yourself by considering the all over the global environment and where we are placing into that. So in that series आपको डेली का एक मार्केट व्यू मिलेगा. Mostly we'll try to provide both before the market or after post market analysis also. So it's a new initiative. So based on the feedback and recommendation, we will keep on editing and changing them, making the changes. So basically, as we discussed, आज का जो एक्सपायरी था निफ्टी का, सो इसमें हमने अपने जो क्लाइंट है, पेड सब्सक्राइबर है, वहाँ उनको अपना व्यू शेयर किया था, ट्रेड भी शेयर किया था, दैट वी कैन आई मीन विल बी शोइंग इट टू यू ओवर हियर. सो आज का जो ट्रेड हुआ, सो इसको इसका जो कंक्लूजन हुआ, इसको जानने से पहले बेसिकली आपको ना एक कंक्लूजन का इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये यहाँ पे एक्सपायर क्यों हुआ, क्या हो सकता था, ये बेसिकली एक एक वीक पहले जाना पड़ेगा आपको, 1 से 2 वीक पहले जाना पड़ेगा, वेयर वी वर ट्रेडिंग बेसिकली अराउंड 19,700 दैट टाइम. And then suddenly that US default news start looming around the market and made an impact. सो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा मार्केट स्ट्रक्चर जो एक हमारा जो 19,200 से हमने एक लो मार के इमीडिएटली ऊपर आए थे 19,600-700 की रेंज में. सो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया एंड ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्टेड everybody started talking about like US getting default or dollar. Of course it's a headline which can make a larger impact on the market globally, but we have to see, I mean, हमारा मार्केट क्या कर रहा है, कैसे प्लेस्ड है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखो मार्केट का, मतलब राइट फ्रॉम मैनी लास्ट 1.5 ईयर. सो हम लोग कितने भी बुरी से बुरी न्यूज़ है उसको बहुत अच्छे से पचा ले जा रहे हैं. So we have to see where we are standing, I mean, at a point of time, and you have to adjust your trading position accordingly. I mean, like whether if you are a positional trader, you have to how you have to manage by applying the risk management strategies, or you have to, if you are day trader, then the strategies are different. So likewise, but you have to keep your eyes open all the time. That's basically the thing is. So जो भी हुआ लास्ट वीक के, जो मार्केट का एक फियर था कि यूएस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो वो एंड में दोनों पार्टीज मान ही जाती हैं. अभी तक का जो है लास्ट 2-3 टाइम से आप देखते आ रहे होंगे. तो उस वजह से क्या है कि एक मार्केट के ऊपर प्रेशर था, तो वो थोड़ा साइडलाइन हो गया. अभी बीच में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ, सडनली जो एक क्रूड अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि सडनली एक रिस्क आ रहा था कि $100 के ऊपर की बातें होने लग गई थी, 110, 120, 130. कुछ लोग तो बहुत सारे बलिश टारगेट देने लग गए थे. तो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्लेयर्स भी जो मार्केट में हैं, वो भी एक हेजिंग पोजीशन में आ जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं. बट सर लास्ट 2-3 डेज में क्या हुआ कि सीधा $90 वाला 80 के आसपास आ गया क्रूड पर बैरल. तो एक अच्छा खासा 10-15% का करेक्शन हो गया, विच हैज़ provided a breathing space to our market, and that has been the major reason. If you see, I mean, कल even though US market इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, आप देखेंगे स्मॉल पॉज लिया, थोड़ा सा रिकवरी आया, but we given a good start, and later on we give a small market given a small chance to I mean come out of that, and quickly the dip got bought into. So basically what you have to see, the positioning of the market. I mean, like
कल का अगर आप सेशन देखोगे तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था 2 दिन में क्रूड इतना गिर जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। तो देयर वाज सो मेनी शॉर्ट पोजीशन केम इनटू द आई मीन मार्केट। एक और डिफरेंट थिंग्स इज गोइंग ऑन। आई मीन अभी तीनों इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी हो रही है, तो लास्ट 3 वीक्स का पैटर्न देखोगे ना, तो अभी पोजीशनिंग लार्ज प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। तो उसमें क्या है कि आपको देखना है कि जिस दिन किसी एक इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, आप देखोगे कमिंग डेज वाले में अलग से मूव आने लग जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो उसमें क्या है, आपको ना एक ट्रेडर को और ज़्यादा अभी चेक एंड बैलेंसेस अप्लाई करने पड़ेंगे, एंड दे नीड टू बी मोर अलर्ट ऑल द टाइम. So that is where the role of people like us come into the picture. So we provide all the market updates, live market supports to our clients. So this is how the things are going to be basically. So मार्केट नीचे आया, गैप बॉट इन हो गया। रीज़न ये है कि अगर आप देखो मोरलेस 19,500-600 में लगभग 450 और 500 के स्ट्राइक प्राइस में लगभग 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए थे शॉर्ट साइड में, जो कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट आराम से उनको दे देगी। बट सडनली बिकॉज ऑफ क्रूड कंफर्ट एंड द यूएस मार्केट टेकिंग ए पॉज, एक सडनली ब्रीथर मिला मार्केट को, एंड दैट give us a good reason to cheer up again. And you'll have to remember that अभी अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर हमेशा से फेस्टिवल मंथ, एक चेयरिश मूड में रहता है मार्केट। एक निगेटिविटी को साइड लाइन करके मार्केट अपने ही जोन में चला जाता है, और ऑल ऑफ अ सडन यू सी लाइक ना ऑल कंज्यूमर स्टॉक्स, QSR एंड ऑल दिस। अभी वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी आई मीन it's kind of a bonanza for the market. So a lot of QSR space, hotel, traveling, lot of these stocks will come into the picture. इससे होता है कि actually एक mood positive हो जाता है, and everything is all about mood psychology in the market. So that you need to understand. So mood अच्छा है, mood ख़राब है तो कितना भी अच्छा रहे कुछ अच्छा नहीं लगता है, और mood अच्छा है या कुछ अच्छे रीजंस आ रहे हैं सामने टू सेलिब्रेट अराउंड, तो फिर एक क्या है, आदमी ना सारी निगेटिव चीज़ों को साइड लाइन कर देता है। एंड दैट इज व्हाट आवर मार्केट इज डूइंग फ्रॉम लास्ट द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन सी। एंड you just have to buy the, actually the trend is like, we have been कि all whenever there is a negativity and the market is fallen because of the global news, so that has been a very good a reason for the domestic players to step in into and the buy, like बहुत सारे आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, वो पड़ा हुआ है, और दे नीड सम गुड डिप। मार्केट रीजनेबली अभी एक थोड़ा ठीक ठाक सा डिप आया, तो इसकी वजह से ये बाय हुआ। तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ अच्छे से सेटअप है। RBI का पॉलिसी है कल, तो मोर और लेस गोइंग टू बी लाइक लास्ट टाइम हॉकिश पॉज काइंड ऑफ अ थिंग। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस नहीं है। लेट्स सी, कमेंट्री पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सो विल गो विद द न्यूट्रल माइंडसेट, वट एवर द कम्स विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। मार्केट 19,700 के वीक लास्ट 15 डेज का अगर आप देखो तो 19,700 19,350 की रेंज में है। वैसे ही बैंक निफ्टी भी है। एक मोटा मोटा अगर आप देखो तो 44,700 और नीचे में 43,900 प्रिसाइसली, एक रेंज बाउंड ये बीच में हम लोग एक्सपायर किए हैं। So it's all positioning game now. Expiry game is making a lot of impact, and it will be the game later on in the future also. So you need to be alert. You have to all the time you have to check your position. You have to keep proper hedge if you are a professional trader, and manage your position accordingly. So this is how we'll be providing an update accordingly. So for more updates like this, keep following the Navid View. We'll provide valuable updates over here. Thank you.